آئیے عزیزو ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی اس شام کی عبادت کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ خدا ان کا شکر کریں کہ خدا نے سارا دن حفاظت اور نگہبانی کی اور یہ ہمیں موقع عنایت کیا کہ ہم خدا ان کے ذریعے کے طرح کا جھک کر اس کو سجدہ کریں، اس کے نام کو جلال دینے کا باعث بن سکیں، کیونکہ خداوندی جھکنے کے لائق ہے، خداوندی تعریف کے لائق ہے، خداوندی تمجید کے لائق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا معبود نہیں جس کو جھک کر سجدہ کیا جائے۔ خداوند کا ہم شکر ادا کریں کیونکہ وہ بھلا، اس کی شفقت ابھی اور اس کی وفاداری کوشش رہتی ہے۔ اس مالکوں کے مالک کا شکر ادا کریں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بڑے بڑے کام کرتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر معاوضات کرتا ہے، ہمیں صحت، تندرستی اور طاقت عطا فرماتا ہے تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دینے کا باعث بن سکیں۔ شکر کریں خداوند کا، ہر ایک زبان خداوند یسوع کے نام سے کھل جائے اور خداوند کا نام عزت و جلال پائے۔ میں عبادت کے آغاز میں محترم جناب یونس ملک صاحب سے کہوں گا کہ عبادت کے آغاز کے اندر دعا کے اندر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح کے رس کے نام سے آمین۔ شکر گزار ہے خداوند آج کے سارا دن اور رہنمائی کا اور زندگی کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کا، زندگی کے سارے دیے گئے فضائل اور برکات کا۔ خداوند ہم نے سارا دن تیرا پاک مدد اور رہنمائی فرمائی اور اس وقت تیرے خیمہ اجتماع میں پہنچے تاکہ تیرے لوگوں کے ساتھ آج کی شکر گزاریاں تیری بارگاہ الہی میں پیش کر سکیں۔ شکر گزار ہے خداوند ان تمام فضائل کا خداوند آج کے دن ہم نے پائے اور ہر طرح کی صحت یابی اور تندرستی پائی۔ اب سازوں پر، آوازوں پر تیرے پاک گہرا مسا کو مانگتے ہیں تاکہ جو بھی حمد و ستائش کی جائے اور جو بھی گیت گائے جائیں اور جو بھی تیرے ذکر خوش کلام کو ہم شیئر کریں وہ تیری حضوری میں فضل کا وسیلہ بنے اور تیرے لوگوں کے لیے راحت اور قوت کا وسیلہ بنے تاکہ بنجر زمینیں تیرے کلام سے منور ہو جائیں اور جو بیمار روحیں ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں یا جہاں کہیں بھی اس وقت موجود ہیں، خداوند آج کی عبادت کے وسیلہ سے تمام لوگ فضل پائیں، راحت پائیں، خوشی پائیں، قوت پائیں اور زندگی کا اطمینان پائیں۔ ہمارا آج کا سجدہ آپ کی بارگاہ الہی میں قبول ہو اور اس کی برکت کا اثر اہل محلہ کے لیے، اہل لاہور کے لیے، اہل پاکستان کے لیے اور تمام مسیحی لوگوں کے لیے مانگتے ہیں ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے عزیزو خداوند کی پرستش کریں کیونکہ وہی پرستش کے لائق ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، اس کی صفتوں کو بیان کریں۔ زبور 92 تیریاں صفتوں اور گانیاں گیت کے کرنیاں شکر خدا، میرے ربا چنگی ریت کے کرنیاں شکر خدا۔ خداوند یہ سنا چاہیے مجھے تیری تعریف کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب میں تیرے بڑے بڑے کام دیکھتا ہوں، میں تیرے بڑے بڑے عجائب کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور خداوند میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ آئیے ہم خدا کے نام کو جلال بخشیں کیونکہ وہ دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اپنے ہونٹوں کا استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں یسوع کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں، کیونکہ خداوند کی برکت دینے والا ہے۔ آئیے خداوند کے ذریعے کے اندر خداوند کے نام کو جلال بخشیں۔ تیریاں صفتاں دے کونیاں Thank you.
करने मेरे रब्बा चंगी रीत करने शुक्र खुदा ये सुना सी जो इस तारीफ के लायक है, तमजीद के लायक है, वही जो है अव्वल है, वही आखिर है, वही इब्तिदा है। आइए अपने खुदा उनको पुकारे। ये हवा में पुकारता हाँ मेरे वाल तू जो तो पुकारा मैं तेनू खुदाया जे सुन ले मेरी गल कान ला। खुदावन हर वक्त हर घड़ी आपकी दुआओं का जवाब देने के लिए वो तैयार है। जब भी हम इल्तिजा करते मनाजात करते हैं खुदा फौरी उसको जवाब देता है। तो मेरे हृदय खुदा से मांगे, खुदा से कहें खुदा मैं तेरा मुस्ताक, मैं तेरा तलबगार हूँ, मैं तेरी चाहत रखता हूँ। खुदा तुम मेरी तरफ आओ। आपके खुदा मेरे होठों की, मेरे दिल की, मेरी आंखों की, मेरे बदन की पूरी ख्वाली कर, ताकि खुदा मैं तेरे नाम को जलाल देने का बायस बन सकूँ। आइए सबका खुदा की के अंदर ये मस्तिष्क में गीत गाएं ताकि खुदा के नाम को जलाल यहोवा मैं पुकारेगा ताकि आज के कलाम के वसीला से हम जिंदगी हासिल करें, खुदा के नाम को जलाल देने का बाइस बन सकें। तो भाई परवेज जलाल जो है वो खड़े होंगे, यहाँ पे आएंगे और दुआ के अंदर हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। बाकी सब लोग खुदा का जिंदगी बच के नाम आए चीज़ों अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि हमारा खुदा
जो बड़ा मेहरबान खुदा है, जो हमारी ज़रूरतों को जानता है, जो हमारी परेशानियों को जानता है, जो हमारे मांगने से पहले हमें मुहैया करता है। ऐ खुदावंद खुदा, हम सब पे रहम कर, हम सबको प्यारे खुदा अपने हाथों के नीचे रख, ताकि तमाम बीमारियां, तमाम तकलीफें आपके हाथ के नीचे रहकर दूर हो जाए और आपके लहू से हम सब मसा किया जाए, ताकि हम सब बरकत पाएं, वो बरकत पाएं खुदा जो आपके वसीला से मिलती है। ऐ रहम करने वाले खुदा, अपने पाक रूह की आग जला और इस वबा जैसी बीमारी को जलाकर भस्म कर, ताकि तमाम इंसान गोया जमीन पर जितने बीमार हैं खुदा तमाम लोग शिफा पाएं आपके वसीला से खुदा, क्योंकि आपका जो कोई नाम लेगा वही जिंदगी पाएगा। जो कोई आपको मोहब्बत करेगा वो कभी हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी आपके पास है। ऐ खुदा, अपने खादम को जो हर रोज कलाम देखकर हमको समझाते हैं, एक एक बात समझाते हैं तरीके से, ऐ खुदा इन्हें और बरकत दे, कसरत की बरकत दे, ऐसी बरकत दे ताकि तमाम कोने कोने तक इनका कलाम जाए, तमाम लोगों की जिंदगियां बदल जाएं, हर एक सर यीशु के आगे झुकने वाला बन जाए। ऐ खुदावंद आपकी बरकत चाहते हैं, ऊपर आपकी बरकत चाहते हैं, ताकि जो कोई प्यारे खुदावंद आपके नाम के आगे सर झुकाएगा वही बरकत पाएगा। मैं ज्यादा मांगता नहीं, आपने कभी काम दिया नहीं। ऐ खुदावंद खुदा, मैंने जब भी मांगा है यीशु नासरी के नाम से मांगा है, आमीन। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में मैं तमाम नाज़रीन की, तमाम कलीसिया की, दुनिया के कोने में अंदर बसने वाले तमाम मसीह लोगों की, कलीसियाओं की यीशु के नाम से सलामती चाहता हूँ। और आज के कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के कलाम का मेरा मौजू है, टॉपिक है, जो हमारा सबक है, जो हमें आज सीखना है, पेश कीमती मोती, यानी कि पेश कीमती मोती। आज हम देखेंगे कि पेश कीमती मोती कौन से हैं और कौन सुदागर है और कौन मोती है। आज हमने इस चीज की तरफ देखना है। तो आइए कलाम मुकद्दस में मेरे साथ जरा देखिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मुकद्दस अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 45 से 46 आयत तक मिसेस की आएंगी और इस हवाले की तलावत करेंगे। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस में मैं आपके सामने मत्ती की अंजील उसकी 13 बाब 45 से 46 आयत तक खुदावंद के पाक नाम की तलावत करती हूँ। फिर आसमान की बादशाही उस सुदागर की मानित है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसकी एक बेशबा कीमती मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल लिया। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम का पढ़ा और सुना जाना सब हमारे लिए बाइसे खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, अभी आप लोगों के सामने खुदावंद के ज़िंदगी में कलाम की तलावत की गई कि फिर आसमान की बादशाही उस सुदागर की मानंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। यानी कि सुदागर कौन है? हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह, और वो उम्दा मोतियों की तलाश के अंदर है, उन लोगों की तलाश के अंदर है जो कीमती मोती हैं और उनको खरीदना चाहता है। और लिखा है जब उसे एक बेकीमती मोती मिला, यानी एक कीमती मोती जब उसको मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब कुछ बेचकर उसे मोल ले लिया। मेरे अजीजों, मेरे मसीहा ने भी इसी तरह आज दुनिया के अंदर अपने बेटे को बेचकर हमारी कीमत अदा की और सबसे कीमती चीज अपना इकलौता बेटा हमारे लिए इस दुनिया के अंदर बख्श दिया और हमें खरीद लिया, ताकि हम गुनाहों
سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کے اندر شامل ہو جائے۔ اور میرے عزیزو، موتی نہ صرف صداقت کی ملکیت ہے بلکہ یہ اپنی ذاتی آرائش کے لیے بھی ہے۔ اس تمثیل میں کلیسیا نہ صرف ایک خریدی ہوئی ملکیت ہے بلکہ مسیح خدا کی آرائش کے لیے ایک پیش قیمتی موتی ہے۔ کلیسیا خدا کی دلہن، خدا کے بیٹے بیٹیاں پیش قیمتی موتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کی یوں تشریح کریں کہ موتی تو مسیح ہے اور گنہگار شخص صداقت ہے، تو یہ تعلیم بالکل کتاب مقدس کے خلاف ہے۔ میرے عزیزو، گنہگار انسان کی قیمت ہماری مخلص دینے والے مسیح خدا نے ادا کی ہے۔ اور انسان نے، کیونکہ انسان کا تو پہلے ہی دیوالیہ نکل چکا تھا، ہم گناہوں کی دلدل کے اندر تھے، ہم گناہ کے اندر تھے، ہماری خلاصی نہیں ہو رہی تھی، ہمیں نجات دینے والا کوئی نہیں تھا، ہماری حامی بننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے مسیح نے آ کر اس گنہگار شخص کے لیے، تمام ان کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا اور ہمیں خرید لیا اور ہم اس کی ملکیت ہوئے۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ اس کے پیش بہت قیمتی موتی ہیں، موتیوں سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ کو میرے مسیح نے اپنی قیمتی جان دے کر خریدا ہے، آپ کو آزاد کیا ہے۔ آپ آزاد ہو کر اس دنیا میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ اگر خداوند ہماری خدا کا بیٹا اس دنیا میں آ کر میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش نہ کرتا تو میرے عزیزو، ہماری کوئی قدر اور قیمت نہ تھی، لیکن مسیح نے آ کر ہمیں خریدا، ہماری قدر اور قیمت بن گئی اور ہم پیش قیمتی موتی بن گئے۔ خداوند نے ہمیں مول لے لیا، ہم اس کی ملکیت ہیں اور خداوند ہمارا سوداگر ہے۔ اور سوداگر ہمیشہ اچھے موتیوں کی تلاش کرتے رہتا ہے۔ اور اچھے موتی کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم خدا کے کلام کے اوپر عمل کر کر، ہم خدا کے حکام پر چل کر، ہم خدا کے قوانین کو اپنی زندگی کے اندر روئے کار لا کر ہم اچھے پیش قیمتی موتی بن سکتے ہیں۔ اور سوداگر جو ہوتا ہے، جب اس کو قیمتی کوئی موتی ملتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں تمام سوداگروں سے بڑھ کر اس کی قیمت لگا کر اس موتی کو خرید لوں۔ تو میرے عزیزو، میرا مسیح بھی کچھ اسی طرح کا ہے، آپ کیسے کیوں نہ ہوں، آپ کی حالت کیسی کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی نظر میں آپ کی قیمت اور قدر ہے۔ جب ہم خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کے فرزند ہیں، خدا کی دلہن ہیں، خدا کی کلیسیا ہیں، خدا کے شاگرد ہیں، تو خداوند کی نظر میں آپ کی ویلیو ہے، قیمت ہے۔ شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہ ہو، لیکن خداوند نے کوئی بھی جب ہماری حامی نہیں بھر رہا تھا تو اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم کو خرید لیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک چشمہ ہے، اس کی میں نے قیمت ادا کر دی، اب یہ میری ملکی ہے، اس کو میں کیسے بھی استعمال کروں، جیسے مرضی استعمال کروں، کیونکہ یہ ملکی ہے۔ اب خداوند نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے، اب خداوند ہمیں جیسا چاہے استعمال کریں۔ ہم اس کی ملکیت ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے خریدے ہوئے اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ یہ تو ہمیں اپنے، اگر ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہماری زندگیوں سے بھی خداوند یسوع کی جھلک نظر آنی چاہیے، خداوند کے نام کو جلال ملنا چاہیے، اور ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہماری زندگی کے اندر خداوند کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور 18 اور 19 آیت۔ پہلا پطرس پہلا باب 18 سے 19 آیت میں سے رحیدہ سفراج پڑھنے کے اندر ہماری رہنمائی کریں۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب 18 اور 19 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرجوع ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، اس سے تمہاری فانی خلاصی فانی یعنی
सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस तेरा शुक्र हो। ठीक है कि तो तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, हमारे चाल चलन से, हमारा जो रवैया था, हमारा उठना था, हमारा बैठना था, हमारा चलना, और जो बाप दादा के जमाने से चला आ रहा था, उसने हमारी खलासी जो है फानी चीजों से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपने कीमती खून के जरिया से हमारी जिंदगियों के अंदर जो गुनाह आलूदा हमारी जिंदगी थी, जो हमारे अंदर गुनाह थे, उसने अपने बर्रे के लहू से हमें बेदाग किया, हमें जो है वो बीमारियों से, तमाम गुनाहों से छुटकारा दिया और हमें निजात बख्शी। याद रखे, सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब, और यहाँ पे लिखा है बेदाग बर्रे यानी मसीह के पेश कीमती खून से हमारी जो है कीमत अदा की गई है। इसलिए अपने बदनों से खुदा उनका जलाल जाहिर करें, और उसने हमारे लिए जो है कीमत अदा कर दी है। अब आप पेश कीमती मोती बन गए हैं। आप दुनिया की नजर के अंदर, जब खुदा हमारा बादशाह है और हम क्या हो इसके बेटे बेटियां, और उसकी, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है तुम शाही कानों का क्या हो, फिरका हो, मुकद्दस कौम हो। जब खुदा हमारा बादशाह है तो हम उसके शहजादे और शहजादियां, और जब वो बादशाह है तो बादशाह की औलाद को भी वैसा ही रवैया रखना चाहिए, वैसा ही मिजाज रखना चाहिए जैसे हमारे मसीह यीशु का। हमारे उठने, हमारे बैठने से, हमारे चलने से, हमारे बोलने से खुदावंद की झलक नजर आनी चाहिए, मसीह हमारे अंदर नजर आना चाहिए, क्योंकि उसने अपना कीमती खून देकर मुझे और आपको खरीदा, तो आपके बदलों से खुदावंद का जलाल जाहिर होती है। सौदागर खुदावंद मसीह है मेरे अजीजों, वो पेश कीमती मोतियों की तलाश के अंदर है। वो सौदागर है, वो उस काबिल है कि एक बहुत बड़ा कारोबार को चला सके और संभाल सके। बहुत बड़ा कारोबार उसके सुपुर्द किया गया है और वो अच्छे मोतियों की तलाश में है। मसीहा का एक बहुत बड़ा कारोबार उसे सौंपा गया कि वो अच्छे अच्छे मोतियों की तलाश करे। और अच्छे अच्छे मोती कैसे तलाश होंगे? अभी मैंने बताया कि हम खुदा के कवानीन पर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत हो, हमारे अंदर खुशी हो, हमारे अंदर इत्मीनान हो, हमारे अंदर नेकी परहेजगारी हो, इल्म हो, दूसरों के लिए दुख और दर्द के अंदर शामिल होने का एक जज्बा हो, गरीबों, यतीमों, बेसहारों के लिए आपके दिल के अंदर दर्द हो, फिर आप सच्चे मोती बन सकते हैं, बेकीमती मोती बन सकते हैं। और खुदा ऐसे मोतियों की तलाश में, ये ना कि हमारी जिंदगी के अंदर आजमाइशें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे मोती बन सकता हूँ? खुदावंद आपकी तलाश करे। सब्र करने वालों के, जो सब्र करते हैं, जो आजमाइशों का सामना करते हैं, जो परेशानियों का सामना करते हैं, ये ना सबने हमारी फिक्र करने वाला कोई नहीं। खुदा ने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? आराम दूंगा। क्यों आराम दूंगा? क्योंकि मैंने तुम्हारी कीमत अदा की और मैंने तुम्हारे लिए इस दुनिया में आकर हाथों पाँव में कीट रखवाए, सर पर कांटों का ताज रखवाए, मुझ पर लान तान की गई। इसके लिए मेरी और आपकी, ताकि आपको खरीद सके, आप पेश कीमती मोती बन सके। तो मेरे अजीजों, हम गीत गाते हैं तेरे मार खाने से मैंने ये शिफा पाई है, उसके मार खाने के वसीला से मैंने निजात खलासी हासिल की है। और खुदावंद जो है हमारा सुधाकर है, वो अच्छे मोती की तलाश में है। और मोती क्या है? कलीसिया, हमारी कलीसिया, हम लोग, हम उसके बेटे बेटियां। कलीसिया बड़े की दुल्हन है और उसने बहुत भारी कीमत देकर इसे खरीदा। इस कलीसिया को, इस मोतियों की कीमत अदा की हुई है। आप उसके सच्चे मोती हैं और उसने बड़ी भारी कीमत देकर हमें खरीदा है।
कोई गीत गाते हम कि तू पढ़दा ना मेरी हामी मर जाता मैं विच गुलामी। अगर खुदावन हमारी हामी ना भरता, अगर खुदावन यीशु मेरे लिए आकर अपनी शरीर पर जान ना देते, तो मेरे अजीजों कोई भी मेरी निजात का वसीला ना बनता, कोई भी मेरी खलासी का वसीला ना बनता। वाहिद ये खुदावन यीशु नासरी जो खुदा का इकलौता बेटा था, उसने अपने बेटे को भेजा, जाओ इस सारे जहान की दुनिया की कफारा और इस निजात के लिए तुमने कहा। लेकिन उसने क्या किया? उसने भी वफादारी दिखाई। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला टल जाए, लेकिन जिस तरह तेरी आसमान पर मर्जी पूरी होती है वैसे ही जमीन पर। क्या हम इस तरह कह सकते? हम उसकी कलीसिया हैं, हम उसके मोती हैं। वो जब आपको वो ढूंढ रहा है, सच्चे मोतियों की तलाश कर रहा है, हम दुनियादारी की तमाम चीज़ों को छोड़कर, हम दुनिया की तमाम परेशानियों को छोड़कर, दुनियादारी के तमाम हालात के ऊपर जो हम नज़र लगाए हुए बैठे हुए, उनको अलहदा होकर अगर मसीह की तरफ नजर उठाएं, तो खुदावन आपकी तलाश में जो है, जब आप उसको मिल जाएंगे तो खुदावन आपको मिल जाए। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है अगर तुम उसके करीब जाओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। और अगर आप भी उसके करीब ना जाएं, अगर आप भी उसकी तलाश ना करें, तो कैसे खुदावन आपको मिलेगा? जैसे खुदावन आपको तलाश कर रहा है, वैसे ही आप उसकी सच्चे दिल से तलाश करें। क्योंकि कलाम कहता है मांगोगे तो मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यानी कि अगर मांगेंगे तो ही मिलेगा ना। तलाश सच्चे दिल से। और कलाम के अंदर क्या लिखा है? पहले ढूंढो तुम उसकी, ये सारी चीजें तुमको मिलती हैं। मत फिक्र मत हो, मत परेशान हो। खुदा के कलाम के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हवा के परिंदों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप फिर भी उनको मुहैया करता है। तुम्हारी कदर कीमत तो इन परिंदों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि उसने अपनी छवि पे आपको बनाया है, आपको कीमती खून से खरीदा है, आपके लिए कीमत अदा की है। और खुदा के कलाम के अंदर ये भी लिखा है, तुम में से कौन ऐसे हैं कि अगर उनके बच्चा उससे रोटी मांगे तो उसे के पत्थर खा के सो जाए, मछली मांगे और उसे के सांप आ गए। कह रहे जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हो, क्या मैं तुमको ना दूंगा? तो खुदावन ऐसा करने की कुदरत रखता है। उन सच्चे मोतियों की तलाश के अंदर है, उनको ये सारी चीजें मुहैया करना चाहता है जो उसके तलबगार हैं। अगर आप सच्चे मोती हैं, अगर खुदावन की कोशिश करते हैं, खुदावन के तलबगार हैं, खुदावन की आस लगाते हैं, खुदावन यीशु के नाम को जलाल बख्शते हैं, तो खुदावन बेटियां बनाते। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है ईसा नबी के ज़िम्मे के अंदर, अगर तुम राजी रहो, यानी कि अगर खुदा के साथ आपका लिंक रहे, अगर तुम राजी रहो, फरमाबरदार हो, तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। खुदावन आपको देगा, मुहैया करेगा, क्योंकि वो कलाम कहता है कि वो यहोवा यही है जो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। तो फिर आगे लिखा है अगर तुम बागी हो जाओ, यानी अगर उसका इनकार करो जिसने आपके लिए कीमती जान अपनी इस दुनिया में आकर दी है, आपको खरीदा है, आपको सच्चे मोतियों की तलाश के अंदर आपकी तलाश कर रहा है, अगर आप बागी हो जाओ तो लिखा है कि तलवार का लुत्मा हो जाओ। खुदावन के बगैर, खुदा के पाक के बगैर हम अधूरे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक कदम भी नहीं चल सकते। तो याद रखें कि आप उसकी कलीसिया हैं और उसने बड़ी भारी कीमत देकर हमें खरीदा है। जिस तरह आगे का मसीह उसकी दुल्हन, उसके लिए एक बेकीमती मोती है, हम उसकी दुल्हन हैं और उसकी क्या है? बेकीमत मोती है उसके लिए। फिर वो हर जमाने में इसके लिए इज्जत का ताज है, उसकी कलीसिया हर जमाने के उसके लिए तलाश है। क्योंकि वकाश की किताब के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? आ तुझे दुल्हन यानी पर्दे की बीवी को दिखाऊं, यानी एक खरीदी हुई मलकियत, आप उसकी दुल्हन हैं और उसकी जो है मलकियत है। दुल्हन किसकी मलकियत होती है? दूल्हे की। और यीशु हमारा दूल्हा है और हम उसकी क्या है? दुल्हन है। और फिर लिखा है कि खुदा के कलाम के अंदर अगर हम देखें वो कीमती उसकी अपनी ज़िंदगी थी, खुदा ने अपनी कीमती ज़िंदगी की परवाह ना की
اور اس نے اپنی جان نذرانے میں دے دی، اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور ہماری خاطر ہوا اس دنیا میں آیا اور اپنی جان قیمتی دے کر اس دنیا میں آیا، مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کے لیے میرے لیے، تاکہ ہم جو سچے موتی بن سکیں، ہم بیش قیمتی موتی بن سکیں، اور خداوند نے اپنا سب کچھ بیچ دیا میرے لیے اور آپ کے لیے، قربان کر دیا، اپنے اکلوتے بیٹے کی بھی پرواہ نہ کی اور ہمیں خرید لیا۔ میرے دل خدا کے کلام کے اندر ہم لکھا ہے، کیونکہ تم ہماری یسوع کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ خدا نے کیا کیا کہ اس نے دولت مند تھا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، اور اس نے کیا کیا، ہماری خاطر غریب بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں آ کر عاجز کر دیا اور اس دنیا میں آ کر خدلی کے اندر جنم لیے، جہاں پہ بھینس، بکریاں، بھیڑیں کے چارہ کھاتی، وہاں پہ آ کے اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ جنم لیا، اور لکھا ہے کہ اس کی غریبی کے سبب سے کیا ہو جائے، ہم دولت مند۔ مجھے اور آپ کو دولت مند کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، اپنی قیمت سے ہمیں خرید لیا، بس اپنے بدنوں سے خدا کے ہم جلال کو ظاہر کیا۔ جب اس نے ہمیں خریدا ہے تو آپ کے بدنوں سے خدا ان کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدنوں سے خدا ان کا جلال ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے غلام کیوں بنے، جب مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے قیمت ادا کر دی؟ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آدمیوں کے غلام ہیں، جو دنیا کے اندر کتنے ہیں، وزیروں کو پوج رہے ہیں، کوئی کسی اور کو، امیر شخصوں کو پوج رہا ہے، کسی کے بدولت ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی اور چیزوں کا کر رہے ہیں، کسی اور معبودوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کسی اور کے پاس جا رہے ہیں۔ جب میرے مسیح نے قیمت ادا کر دی ہے تو مت آدمیوں کے غلام بنے، آپ خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، آپ سچے موتی بن چکے ہیں، جن کی تلاش اس نے اپنی قیمتی جان دے کر کی ہے۔ تو میرے عزیزو، مسیح خداوند اپنی کلیسیا کے لیے یہ کہہ سکتا ہے، میں نے ایک بے قیمتی موتی کو پا لیا۔ جب مل جاتے ہیں تو مسیح کہتا ہے کہ میں نے اس بیٹی کو پا لیا، میں نے اس بیٹے کو پا لیا، اور لکھا ہے کہ میرا دل خوشی سے لبریز ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند خوش ہوتا ہے جب ایک روح زمین پر ایک جان توبہ کرتی ہے، نجات حاصل کرتی ہے، تو آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتے جو ہے خوشیاں مناتے ہیں، اور خداوند اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میں نے ایک بیش قیمتی موتی کو پا لیا ہے، میرا دل خوشی سے لبریز ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ آپ کو خداوند نے بہت باری قیمت سے دے کر خریدا ہے، چنانچہ آپ صرف اپنی خریداری کی زینت بنے، نہ کہ دوسروں کی۔ آپ اپنے اعمال سے اپنے خریدنے والے کو جلال ظاہر کریں، جس نے آپ کو خریدا ہے اس کے نام کو جلال دیں۔ لیکن اگر کسی کی میں اگر کسی کا قرضہ ہو، اگر میں وہ کوئی بھائی طارق اتار دیں یا بھائی یونس ملک اتار دیں، تو ہم کس کو کہیں گے، عزت کریں گے؟ بھائی یونس کی یا بھائی طارق، کیونکہ اس نے ہمارے بوجھ کو ہلکا کیا، اس نے ہمارے لیے یہ سارے کام کو کیا اور ہمیں اس لعنتی قرض سے نکالا۔ تو اسی طرح میرے مسیح نے بھی آپ کے گناہوں کی جو ہے خلاصی کے لیے، آپ کی نجات کے لیے، آپ کی ساری اس کام کے لیے میرے مسیح نے اپنی قیمتی جان دی ہے، اور ہمارے بدنوں سے اب کس کے نام کو جلال ملنا چاہیے؟ خدا یسوع کے نام کو۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی ہم گناہ کی دلدل کے اندر ہیں، ابھی بھی ہم کسی کے غلام ہیں، ابھی بھی ہم کسی کے کہنے پر جو ہے اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، جب خدا نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بات کی فکر نہ کرو۔ اگر قرضوں کے نیچے ہیں تو خدا نے کہہ دیا ہے، اے بہت سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور خدا میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم شفا پاؤ، نجات حاصل کرو،
ज़िंदगी हासिल करो और कसरत की ज़िंदगी हासिल करो। और ये भी है कि जब कोई कीमत अदा का हमारा यीशु दुनिया में आया, बल्कि वो आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। और ये भी लिखा है कि फल जो है अपने दरख्त से पहचाना जाता है। अगर एक आम का दरख्त है तो उसके ऊपर आम ही लगेंगे, अमरूद या सेब लगते हुए नहीं देखे होंगे आप। लेकिन अगर खुदावन का मजाज इस दुनिया में आते हुए हलीमी वाला था, मोहब्बत वाला था, खुशी थी, इत्मीनान वाला था, परहेजगारी वाला था, तो हमें भी अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। हमारी ज़िंदगी के अंदर भी ये भाव होना चाहिए, मेरी आप पेश कीमती मोती बन जाएंगे। आप उसकी कलीसिया हैं, आपको खुदावन ने अपनी कीमती जान देके खरीद लिया है, हम उसकी इमानत है। और हम इस दुनिया में जब रह रहे हैं तो हम परदेसी और मुसाफिर। ये हमारे घराने नहीं है, ये जो हम जो बड़े दावे करते हैं, ये मेरा घर इतनी बिल्डिंग का, इतनी तीसरी मंजिल का, चौथे माले का, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है मेरे भाई, ये सब कुछ चीज़ें जो है दुनिया की हैं। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा पर ईमान रखेगा वो अब तक कायम रहेगा। तो अगर आप उसके बेटे बेटियां हैं तो खुदा की मर्जी को पूरा करें। मत ये सोचें, मत किसी पर आस लगाएं, मत किसी पर उम्मीद लगाएं। अगर उम्मीद लगानी है, अगर आस लगानी है, उस खुदा पर लगाएं कि यह हवा जेरी है, सब कुछ मुहैया करता है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए जो कीमती जान दी है, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में आजकल मैं किसी को कह दूं कि एक अपने इकलौते बेटे को इतना दे दो, हाँ इस काम के लिए कोई भी नहीं देगा, लेकिन मेरे मसीहा ने ऐसा किया, मेरे खुदा ने ऐसा किया और अपना इकलौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया के अंदर भेजा, ताकि हम क्या करें, उस पर ईमान लाएं, इलाज लो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। मेरे अज़ीज़ों, मेरे लिए और आपके लिए वक्त है, उसके लिए आप पेश कीमती मोती बन गए, ताकि उसकी तलाश खत्म हो सके। अगर आप उसकी तलाश को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम आज भी तलाश कर रहे हैं। और वो मोती ये ना समझें कि मेरा तो रंग काला है, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे कुछ कपड़े ऐसे अच्छे नहीं हैं, कोई मेरी हैसियत कोई नहीं है इस दुनिया में अंदर। खुदा ये चीज़ें नहीं देखता, खुदा आपका दिल देखता है। अगर आपका दिल सही है, पाक और साफ है, खुदा उनकी मोहब्बत से लबरेज है, तो खुदा खुशी से कहेगा कि मैंने इस मोती को पा लिया, मैंने इस मोती को पा लिया है जिसकी तलाश में मैं था, तो खुदा खुश होता है। तो आइए हम आज इस बात का अहद करें कि मैं उसकी कलीसिया बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहती हूँ, मैं उसके लिए बेशकीमती मोती बनूंगा, जिसके लिए मेरा खुदा तलाश कर रहा है। खुदा उनकी ज़िंदगी में इस्लाम को पढ़े और सुनिए हम अपना मुंबई के साथ। आइए हम अपने स्वरों को दिखाएँ, भाई तारक आएंगे और अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। अपने स्वरों को झुकाएं। कदूस कदूस मेहरबान रब्बुल फाज, हम तेरा शुक्र तेरी बजा लाते हैं उस नासरी आज के इस खूबसूरत मैसेज के लिए खुदावंद, तो तेरी जिंदा आवाज़ हम तक पहुंची खुदावंद। हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस नासरी, और हम खुदावंद में हिम्मत और ताकत अता फरमा और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, ताकि ये कलाम हमारी ज़िंदगी में खुदावंद इस नासरी 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए खुदावंद। और इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, हमारे चाल चलन दुरुस्त हो जाए खुदा, और हम वो बेशकीमती मोती बने खुदावंद जो तुझे पसंद आए खुदावंद। इस तरह मैं दुआ करता हूँ खुदावंद झुकी जमात के लिए, जितने साथ तेरे आगे सजदा हुआ खुदावंद, हर एक पर अपना शफकत वाला मोहब्बत वाला हाथ रखना खुदावंद, और जितनी जाने खुदावंद इस वक्त देख रही है खुदावंद, उन पर भी अपना मोहब्बत वाला शफकत वाला हाथ बढ़ाना ये सुना, हर एक जान को छूना ब्लेस करना खुदा, क्योंकि बीमार है खुदा उसे तंदुरुस्ती सेहत अता फरमा, जो बे औलाद है खुदावंद उसे औलाद जैसी नेमत अता फरमाना खुदावंद, ताकि तेरे नाम को और जलाल मिल सके। जो बेरोजगार है खुदावंद उनको रोजगार मुहैया कर, जो मुश्किलात में खुदावंद उनकी मुश्किलात जिसके नाम से जाती है खुशहाली और तरक्की आती है खुदावंद। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरी उन नेमतों के लिए खुदावंद जितने हमारी ज़िंदगी में बख्शी, ताकि हम तेरे नाम के उससे जलाल पाएं, कसरत की ज़िंदगी हासिल करने वाले बन सकें खुदावंद। दुआ करता खुदावंद इस वबा के लिए खुदावंद जिसमें मुल्क में है खुदावंद,
तेरे लहू से जाती रहे खुदावंद। यूरोप ममालिक के लिए दुआ करते खुदावंद, ऊपर भी अपना मोहब्बत वाला शफकत वाला हाथ बढ़ा खुदावंद। खुदावंद दिलों को भेद जानता खुदावंद, हर एक को उसके अमाल के मुताबिक उसका अजर देना खुदावंद। हम तेरे हुजूर अपनी दुआएं रखते हैं खुदावंद, मिलते इल्तिजाएं रखते हैं खुदावंद, हर एक जान पर बरकत वाला हाथ बढ़ा। हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता खुदावंद, हर एक जान को छूना, ब्लेस करना खुदावंद, तेरे नाम को और बरकत और जलाल देने वाले मैं अपने खादम के लहू में छुपाता खुदावंद, ताकि इस तरह कसरत से खुदावंद सुनासरी तेरा कलाम हम तक पहुंचाते रहे और हमारी जिंदगी में खुदावंद को कलाम बायस से बढ़ता खुदावंद। हर एक जान को छूना, ब्लेस करना, मांगता हूं तेरे प्यारे और मीठे जलाली नाम से, आमीन। आइए अपने हाथ को उठाएं, कोई दुआ जो उसने अपने शागिर्दों को सिखाई और उसने कहा जब भी तुम दुआ किया करो तो कहा करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस अपने कर्तव्य को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का जलाली बाबरकत शिफा तंदुरुस्ती बहाली और कुव्वत वाला हाथ आप पर, आपके बाल बच्चों पर, पूरी ईमानदार लोगों पर, पूरे के पाकिस्तान पर, पूरी कायनात की कलीसिया पर और तमाम दुनिया के अंदर जितने लोग फंस रहे हैं उन पर खुदा तेरा जलाली नजात और खुशहाली और बरकत और कुव्वत वाला और शिफा वाला हाथ अब से लेकर मसीह के अंत तक हमेशा कायम और दायम रहे। खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको जिस्मानी और रूहानी बरकत से माला माल करे, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन। आप सबके सामने